Good morning, everyone. I, Anuja Palkar, Assistant Professor from Department of Journalism and Mass Communication, Tirak Maharashtra Vidyapeeth, welcome you all, the esteemed guests, staff, and students to our special guest lecture organized today on the occasion of World Television Day. Although as per the date, it is celebrated on 21st November, but we are celebrating it today. As we celebrate the power of television to inform, entertain, and inspire from its humble beginnings as an experimental technology to the omnipresent screens that fill our homes and lives, television has revolutionized the way we connect, learn, and experience the world. World Television Day is celebrated to highlight television's role as a key medium of communication and its impact on global awareness, decision making, and education. It is also a reminder of television's ability to address critical issues such as conflict, peace, and social development. Today, we all will experience an in depth chain of insights from a greatly experienced person, Mr. Mukesh Sharma, on the topic of television today and tomorrow. Before we go ahead in this program, I would now like to request Head of the Department, Dr. Keshav Sathe sir, to please address the audience. Good morning. As usual, every month a special program for you. This is one of them. Dr. Mukesh Sharma sir, I think it is the best opportunity for us to celebrate World Television Day. I don't think any person would be there like you who has a right to be a part of this celebration, because he headed Mumbai Doordarshan as a director, and he went up to the Additional Director General Doordarshan India. His speciality is he's a person from our department, having a sense of marketing, having a sense of understanding people. He's the best communicator I have ever seen. Congratulations, sir, because what the facelift for Doordarshan Mumbai was given by Mukesh Sharma ji. Today we have gathered here, and I express my concern about the television today in India. I will speak for just 2 minutes because he has to go to the Loni fast. Because today television, once upon a time it was a family medium. People used to see television program along with their family members. But now things have changed, scenery has changed. Now everybody is watching, if at all they are watching television program, they are watching it on mobile or sometime on tablet or computer. So television as a medium and a television as a program production organization is decreasing day by day. And so what I feel, yesterday only I wrote an article in Sakar, and I suggested that Doordarshan should take initiative to keep this medium alive, because Doordarshan and Government of India can really see the culture we have. The other private channels, they are not interested in culture, they are interested in business. Okay. That's why I think the Mukesh Sharma ji would definitely enlighten you about what actually television was, where he has worked extensively, and what would be the television for tomorrow. Thank you, sir, for joining us. Thank you very much. As we proceed further, I would now request Dr. Keshav Sathe sir to please felicitate Dr. Mukesh Sharma, chief guest for today's session. As we go ahead for today's lecture, I would now like to give you a brief idea about today's guest lecturer, Dr. Mukesh Sharma, Dean, MIT Art Design and Technology University, School of Film and Theatre. Though in the world of media, he, as Sathe sir said, he is considered as one of the legendary names to always look up to. Mr. Mukesh Sharma is armed with a PhD degree in journalism and mass communication and a master's degree in broadcast journalism. Dr. Mukesh Sharma spearheaded the cinema and broadcast industry as administrator, programmer, and marketing expert as a civil servant for over 30 years. He has produced and directed many feature films, numerous television programs, live and recorded, and received multiple national and international accolades.
Dr. Mukesh Sharma also conceptualized, produced, and directed successfully socially empowering television events for Doordarshan over a period of 17 years. Dr. Sharma has also been associated with various educational institutions in different capacities. The calendar events of DD Sahyadri, created and conceptualized by Mr. Mukesh Sharma, which have now become established brands in their own right, clearly exemplifies his outstanding contribution as a public service broadcaster for the masses. To name few, Navratna Awards, Hirkani Awards, Prerana Puraskar, and the list is just endless. Among his notable recognitions and accolades, he has won many national and international awards in the field of media, films, and again the list is just endless. On behalf of Tirak Maharashtra Vidyapeeth, we are absolutely honored and pleased to have you, sir, today here as our guest speaker. I would now request Dr. Mukesh Sharma, sir, to please proceed with his session and enlighten our students. Good morning to you. It's a beautiful morning today, and thanks Sade sir and everyone here to invite me for this session, and I'm very comfortable when I meet my student friends, right? Okay, today we are celebrating the Television Day. Why we call it television a medium? Because it is not properly cooked. It is still a medium. When we say कि खाना पका है कच्चा है बोले मीडियम कुक्ड है, तो टेलीविजन हमेशा मीडियम ही रहेगा, फिल्म की तरह कुक नहीं हो पाएगा कंप्लीटली, राइट? टेलीविजन इंडिया में कब आया? एनी आइडिया आप लोगों को? पढ़ा होगा आप लोगों ने? कैसे आया, कुछ पता है? अगर पता है तो आगे बढ़ेंगे। मेरा कहने का मतलब है लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, ठीक है? तो हिस्ट्री में आपको आ गया, दिल्ली में करीब 25 एक सेट लगाए गए और उसके बाद कम्युनिटी व्यूइंग जैसी होती है व्यूइंग हुई एंड द टेलीविजन स्टार्टेड इन इंडिया, सो कॉल्ड वी पुट इट। उसके बाद क्या हो रहा था, देयर वाज समथिंग हैपनिंग इंटरेस्टिंग कि पाकिस्तान टेलीविजन बिकेम अ वेरी वॉच्ड टेलीविजन इन द सेम टाइम 60-70s के आसपास। सो व्हाट दे डिसाइडेड, दे सेड कि यार उनके प्रोग्राम्स स्पेशली द प्लेज वे वेरी गुड, पाकिस्तानी प्लेज एट दैट टाइम. So to counter that, and since Lahore and Amritsar were very close, so they started a studio simultaneously after some time in Amritsar. A lot of people may not know. And the tapes were being made in Delhi and they were run from Amritsar. Later on, it was shifted to Jalandhar, which became a television, Doordarshan Jalandhar. After that, of course, your DDK Mumbai came on 2nd October 1972. 2nd October being Gandhi Jayanti, so that was the day they picked up. And it has now crossed nearly 50 years, that Kendra. As sir and everyone has said, I had contributed in my own way in the building of that Kendra. And it's another different story, success or no success that people have to judge. But yes, a lot of hard work and things were done, and that's how we did it. Now, after the television came in Mumbai, then Lucknow and other setups started. And in 1980, around 1980, Mrs. Gandhi was the Prime Minister then. And then it was decided that television should go national now, which means earlier what was happening, the programs were being made individual centers. So we had programs in Mumbai, we have in Jalandhar, in Bangalore, in Chennai, in Delhi, other areas. All capital cities had practically one television station. And do you know how television was being distributed? Have you heard about what we call terrestrial telecast? Have you heard the word terrestrial telecast? How many of you? No. Today what you are watching television is DTH, you have heard? Just get involved with me so that we can understand. So DTH to direct to home we know. We have Wi-Fi, we get through that also. लेकिन इसके पहले टेलीविजन में जो प्रोग्रामिंग जो रिले हो रहा था, that was through LPTs and HPTs, lower power transmitters and high power transmitters. तो एक 100 वॉट का ट्रांसमीटर जो होता था, जो बॉम्बे में था, it could go to उसकी जो रेज आती थी या देखने के लिए वेव्स थी 100 किलोमीटर एरिया में, वेर एवर लाइन ऑफ साइट, जो मैंने वर्ड यूज़ किया, जैसे अगर कैमरामैन का इनका कैमरा उस ज़माने में आपके एंटीना के सामने आ जाएगा तो आपकी व्यूइंग तभी हिलते थे, तो लोग बोलते थे तेरा देखना छत पे जाके देख क्या गड़बड़ हो रहा है, तो लोग एंटीना को हिलाते थे, कभी बंदर हिलाता था, कभी कबूतर हिलाते थे. सो दैट सॉर्ट ऑफ व्यूइंग वाज हैपनिंग एंड हाफ द टाइम द पैटर्न वाज दिस बिकॉज इट वाज एनालॉग टेलीकास्ट, इट वाज नॉट डिजिटल. So you are lucky that you've been born in such time where you have a digital telecast. What we saw in those times, what this, and half the time we had to sit down and see how the wave pattern was. By 1980, they decided that now what we should do is we should try and
connect all these different kendras. So how to do that? So naturally you need a satellite. तो सब यहाँ से अपलिंक करने पड़ते थे सिग्नल्स, वहाँ से फिर दिल्ली में डाउनलिंक करते थे और दिल्ली से फिर सिग्नल्स हमारे पास आते थे. तो इसमें क्वालिटी भी बिगड़ती थी, होता था, बट दैट वाज वन वे ऑफ डूइंग इट. और उसी वक्त इंडिया में एशियाड हो रहा था. एशिया 72 के बाद की बात हो रही थी. सो कलर भी उसी दौरान, कलर टेलीविजन ऑल्सो केम इन टू इंडिया एंड पीपल स्टार्टेड बाइंग. उस वक्त टैक्सेस नहीं थे, तो लॉट ऑफ पीपल गॉट कलर टेलीविजन एज हैंड बैगेज फ्रॉम अब्रॉड. बाहर से जो भी आया है कलर टेलीविजन, या बोलते थे यार जा रहे हो तो कलर टीवी ले आना. चेंजेस वर टेकिंग प्लेस, टेलीविजन वॉज बीइंग नाउ टेकिंग प्लेस. नाउ इन सब में यू हैव टू अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट कि तब की प्रोग्रामिंग और आज की प्रोग्रामिंग. टेलीविजन में जितने सारे लोग आए थे, दे केम फ्रॉम रेडियो, not from FTII. Please understand, they came from radio. Now radio programming was very different because it is for this and not for this. Which means कि आपको most of the time you were visualizing as to how to convey the story, how to tell the story, so that the other person can start thinking. But no clue of camera angles, camera over the shoulder चाहिए कि front में चाहिए कि side, कोई आइडिया नहीं था. उसके लिए FTI आते थे ट्रेनिंग के लिए ना. इमेजिन कि 2 हफ्ते की ट्रेनिंग या 1 महीने की ट्रेनिंग या 2 महीने की ट्रेनिंग में आप फिल्म मेकर या टेलीविजन प्रोड्यूसर नहीं बन सकते अनलेस आप ड्रामा किया. साटे सर, वन ऑफ द रीजन ऑफ माई सक्सेस वॉज आई केम फ्रॉम अ फिल्म मीडियम. आई वॉज फॉर 12 years आई वॉज विद चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी एंड आई मेड फिल्म्स 25 फीचर फिल्म 35 mm ईस्टमैन कलर. तब सेलुलॉइड था. अगर कभी सिनेमा पर चर्चा करनी होगी तो आई विल कम बैक अगेन एंड टेल यू हाउ सेलुलॉइड फ्रॉम डिजिटल वी केम और क्या क्या रास्ते उसमें आते हैं और क्या क्या चीज़ें तब आई और आज क्या है. स्टोरी टेलिंग तब कैसी थी और आज क्या स्टोरी टेलिंग. तो मैं जब आया सो देन आई स्टार्टेड सीइंग कि 2 लोग बैठे हुए हैं ऐसे. तो मैंने कहा कि कैमरा कहाँ है. मैंने कहा फिर इनका ओवर द शोल्डर क्या करेंगे अपन और इसका व्यू पॉइंट क्या लेंगे. सर वो ट्रॉली से कर लेंगे. आई सेड हेलो, कुछ तो चेंज करना होगा. सो when I took over, naturally for 12 years I was with Children's Film Society and I had a chance to work with people like Jaya Bachchan, Shabana Azmi, Amol Palekar and the Doyen of Indian cinema, Mr. V. Shantaram. Even Raj Kapoor's guru, Kedar Sharma, which Raj Kapoor का अगर आपने नाम सुना होगा, जिसका पूना में ही कितना लोनी में बड़ा फार्म है, उनके गुरु थे केदार शर्मा. वो अलग इंटरेस्टिंग कहानी एक थी कि केदार शर्मा ने राज कपूर को ले लिया था. ही वॉज वेरी कीन टू असिस्ट हिम एंड देन ही वॉज ए क्लैपर बॉय. तो वो क्लैपर बॉय ने एक बार गलती से उनकी दाढ़ी खींच ली थी बिकॉज ही वॉज सो इन्वॉल्व इन हिज ओन थिंग दैट केदार शर्मा हैड टू देन स्टार्ट एंड गिवन अ फिल्म. इट्स अनदर स्टोरी. बट व्हाट आई एम सेइंग इज दीज पीपल, दे हेल्प मी टू अंडरस्टैंड सिनेमा, दे हेल्प मी टू डू प्रोग्रामिंग. सो व्हेन आई टुक ओवर एज द डायरेक्टर ऑफ DDK Mumbai, I was comfortable. But before that also I was doing making films. Now do you know in Ahmednagar you have a tank museum? Have you heard about that? That tank museum, and then there is a पूरा टैंक का उनका इतना बड़ा रसाला है. I was the first person to go there and make a documentary in 1997. I was the cameraman, I was the director, I was the writer, all in one, and I was the editor. What I am trying to say is, I was doing multitasking at that time. I expect you to do multitasking today. क्योंकि अगर आपको मुझे एम्प्लॉय करना है और आपको लेना है, and if you are, सर ये मेरा काम नहीं उसका काम है, okay, no problem. Because today the race is, you have got about 150-40 crore people in the country and you have got YouTubes. आप देख रहे हो हर आदमी का YouTube पे एक चैनल है, हर आदमी के फॉलोअर्स हैं, हर न्यूज़ के सबसे ज़्यादा हैं. Because any news which is there, immediately it is taken over. Channel like me, which I am running, a Vishwa Shanti Darshan channel, which is focusing on peace and spirituality and science, may not have so much of people who are interested. So what I am trying to say is, first mantra for you is try and be a multitasker today. Anything and you, it is a one-man army. People used to ask me in Doordarshan when I was working कि आपकी टीम कितनी बड़ी है, तो I used to say that point blank 1 से 10 तक मैं हूँ, 11 से टीम शुरू होती है. Which means वो सारे काम करके मैं उनको दे देता हूँ, कहानी का क्या है, लोकेशन का कहाँ है, प्रोडक्शन, because I was a production manager also. So that is one important thing while you are learning, don't forget that. Coming back to television then the services were separated because earlier television was under All India Radio. So then All India Radio became separate and that Doordarshan became separate. In fact, I was the director of Pune All India Radio also once upon a time in 2007-8 for a year. So once this happened, in between there is something interesting happened. I think it was in 72 or 73 or 75, 70s. At that time,
US started sharing, the NASA started sharing the satellite with us. And there is a thing which came known as SITE, satellite teaching in satellite, what was the full form of SITE? Have you guys? Satellite? Television, correct. So that came, that was for 1 year. That was a very successful experiment which they did. Because for 1 year, they went to the entire, those areas of villages where the signals of DD would not go. So the first time India tasted the, what you call tasted satellite in 70s only through, of course it was for a 1 year short term thing, but that did give an idea that we should start looking on those sides. And that's how in 80s, when the first satellite came up, our own satellite, and we started downlinking and uplinking programs. So we could then, look forward, okay, we can have a national programs and national programming. Now, as sir said that the problem today, what is happening is, I do not know how many of you have seen the old programs of Doordarshan. Programs like Bunyad, program like, in fact, I was told that when COVID was there in 20s, they had rerun of Ramayana. And that Ramayana, I think, was a blockbuster in terms of viewing. Though it was made very shabbily. And do you know something interesting? In that Ramayana, there was a character Sugriv. It was my voice. Wale. What happened that they had come down for some work at Children's Film Society. I was there, Ramanand Sagar himself, or something to meet Jayaji or something. And then Bachchin Nikli, I was talking. So he said, hey, you have a voice, tum kar sakte ho, can you do some dubbing? I said, I have never tried, sir. No, I have got what had happened was, Sugriv was primarily a Sindhi. And he was a Pahalwan, which they have taken up, and he had no clue of acting. He said, तुमको कुछ नहीं करना, तुम्हारे चेहरे पे मास्क लगा देंगे और तुम कुछ भी बोलना, बाकी हम डबिंग में कर लेंगे. तो बिलीव मी, ही वुड लिटरली, गर्मी के मारे परेशान हो गए, गाली तक देता था कभी कभी वो, मुंह पे मास्क वास्क लगाया, अरे बाबा किधर फंसा के रखा है, मैं किधर जाएगा, मेरे को क्या करने का. और वो ऐसे, मैंने कहा सागर साहब ये तो कान में लगा रहा हूँ, तो ये तो मुझे कुछ और ही सुन रहा है. बोले इसीलिए हटाओ इसको. फिर मैं ऐसा करता था, हे प्रभु, हे धुंधुकर, आपके चरणों में मेरा है, अरे वाह, ऐसा करके बेस कर करके. So again because I was a multitasker, so I could do it. Another interesting thing I did at that time was, have you seen Malgudi Days? The first 13 episodes were written by me, the dialogues. Ask me how. Again, accidentally. I was there in Bangalore, the producer was Narasimhan, T.S. Narasimhan, and he was the executive council member of Children's Film Society. So suddenly a man came and I was sitting with him and we were trying to finalize something for CFSI. And I think Shabana ji or Mrs. Bachchan, somebody had sent me there कि उनके साथ बैठ करके उसको final कर लो. Something was to come, a film festival था या क्या था. And a man came and said, वो shooting रुक गया है सर उधर. क्या हुआ? वो डायरेक्टर बोल रहा है स्क्रिप्ट बराबर नहीं है, डायलॉग बराबर नहीं जम रहा. तो मैं सुन रहा था, मैंने कहा कि नरसिम्हा जी लेट मी, नहीं तुम क्यों, क्या बताओ. पहले ही मैंने कहा मैं लखनऊ से हूँ, मेरी ज़ुबान हिंदी है, उर्दू बोल लेता हूँ अच्छा खासा, मेरा तलफ़ुज़ भी सही सा है, नुक्ते उक्ते सब पता है, तो अगर अच्छा लिखना होगा तो लिख दूँगा, दीजिए तो सही. दिया, 2 घंटे में मैंने करा करू के उसको दे दिया. वो बोला हाँ साहब बराबर चालू हो गया. अरे तुमको ये सब क्या. मैंने कहा साहब ऐसे ही है, लिखने का शौक़ है. खैर, लेकिन अब वो आए मेरे पास, बोले आगे का, मैंने आगे के लिए 3000 रुपये पर एपिसोड लूँगा सर. उसका रीज़न बता दिया. मैंने कहा या फिर आप मुझे एक VCR खरीद दीजिए, बिकॉज उस वक्त पैनासोनिक VCR आता था 27-28 हज़ार का उस वक्त. आई एम टॉकिंग जब सैलरी 1500 रुपये थी. तो ही सेड आई विल गिव यू अ VCR. सो आई गॉट माई फर्स्ट VCR फ्रॉम हिम एंड आई रोट दोस 13, नित्या, विलिंग स्लेव, ये सब थे. एंड Ranjit Chaudhary was the screenplay writer. The dialogues were written by me. What I am saying is opportunities will come to you. You have to all the time look around कि यार किधर से किधर होने वाला है. Just don't try and say that कि मेरे को सिर्फ जर्नलिज्म तो ठीक है, तुम्हारे पास एक पेडिस्टल हो गया which will take you. But एनीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन मीडिया, कुछ भी चीज़ निकल के आ रही है बाहर इसमें से, चाहे वो छोटे पर्दे पे आ रही है, बड़े पर्दे पे आ रही है, स्क्रीन पे आ रही है, जानकारी रखो, कोशिश करो जानने की. और सबसे बड़ी चीज़ है ट्राई एंड फाइंड आउट व्हाट इज़ योर ओन स्ट्रेंथ. मैं अच्छा बोल लेता हूँ सर, मैं अच्छा लिख लेता हूँ सर, अच्छा सुन भी लेता हूँ, सुनना भी अपने आप में बड़ी बात है, कहानी आती है, पोइट, एनीथिंग एंड एवरीथिंग. और आज इसका डिमांड ओरिजिनल कंटेंट की इतनी ज़्यादा है दैट यू कैन नॉट इमेजिन. सो व्हेन आई से ओरिजिनल कंटेंट, आई कम बैक टू DDK Mumbai. When I took over at DDK Mumbai, it was a Marathi channel and I am a non-Marathi person. The first salvo was fired by the CM. अरे अगर मराठी होता तो अच्छा होता. लैंग्वेज, मुझे तो लैंग्वेज भी नहीं आती, तो मैं क्यों बोलूँ किसी से. तो फिर मैंने लोगों से बुलाया, लोगों को मैंने कहा भाई देखिए, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब द एप्पल कार्ट. सारा कल्चर का प्रोग्राम वही सब होगा, लेकिन ये प्लास्टिक का फूल नहीं रहेगा, ये यहाँ पर जो है ये पुराना ये कारपेट नहीं रहेगा, ये वाली चेयर्स नहीं होंगी,
all this we will change now. So they asked me, they said कि sir इन सब के लिए तो we need a lot of budget भी चाहिए and then approvals and all that, that will take time. So do you know, interesting thing what I did, what sir said or she told that I do other things also. I asked them, I said, suppose if I want to buy a new sofa for the sets, केन का, what should I do? सर 4 कोटेशन मंगवाएंगे, फिर उनको खोलेंगे, फिर जो यूजुअल होता है, अच्छा चलो कौन कौन इन्वॉल्व है, आप है, मैं हूँ, ये अकाउंट्स का बंदा है, एडमिन है, मैंने कहा गाड़ी में बैठो सब लोग मेरे साथ, लेट्स गो टू ओशिवारा करके मैंने चलो फाइल लेने चलो. वी सॉ, आई सेड जाओ अंदर से कि कोटेशन लेके आओ, मैं बैठा हूँ गाड़ी में, यहीं कहीं फाइल खुलेगी, यहीं कहीं बनेंगे, अभी लोड करके विल ब्रिंग इट बैक. कैन यू इमेजिन द सेट पार्ट इज वो जो मैंने खरीदे थे तब ला करके आज तक वही चल रहा है, उसके बाद फिर वहीं के वहीं रुक गया. सर अभी पूछ रहे थे द प्रोग्रामिंग्स विच आई डिड, हिरकणी अवार्ड्स और नवरत्न अवार्ड्स और प्रेरणा पुरस्कार, आर दे कंटिन्यूइंग? नो सर, दे आर नॉट कंटिन्यूइंग. दैट इज द सैडेस्ट पार्ट, बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड वाज प्रसार भारती व्हेन इट केम. नाउ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट प्रसार भारती. प्रसार भारती, वाई प्रसार भारती? ओके, लेट्स आस्क दिस क्वेश्चन टू आवरसेल्फ. आ जाओ, भागो भागो भागो, जैसे शेर पकड़ने वाला है तुमको. प्रसार भारती के बारे में यू हैव हर्ड अबाउट प्रसार भारती एंड दूरदर्शन एंड आई आर रिपोर्टिंग टू देम, बट वाई प्रसार भारती? जरूरत क्या थी? इससे पहले तो अकेले थे ही, किसी ने सवाल पूछा नहीं अपने आप से. रीजन ये था कि अगेन गो बैक टू 80s में वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी और इंदिरा गांधी की थी. तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के टाइम पर स्लोगन यहाँ तक आ गए थे, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, विच मीन्स, एंड कभी कभी ये भी मजाक करते थे लोग कि टुडे राजीव गांधी डिड नॉट से एनीथिंग, दैट वाज आल्सो न्यूज़. मतलब कैमरा वॉज ओनली ऑल द टाइम ऑन द पीपल एंड नोबडी एल्स न्यू व्हाट इज हैपनिंग ऑन द गवर्नमेंट. फाइन, द गवर्नमेंट ऑफ डे इज प्रोवाइडिंग यू फंड्स, यू डू इट, बट आम आदमी के साथ कनेक्ट कैसे हो रहा है वो चैनल? बिकॉज आई टॉक अबाउट पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग एंड कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग लेटर ऑन. It was not happening. So VP Singh and other people who were the ministers at that time, who became the Prime Minister also, they decided to have Prasar Bharati and Doordarshan and All India Radio separate entity, nothing to do with the government. And they positioned it as a public broadcaster. Ki they will be public broadcasting, they will do, and government will not control. Fine. 90s में Prasar Bharati became an act. You know how an act is made? I hope you must have learned this. मालूम है कोई एक्ट कैसे बनता है? हेलो, नहीं, उसके स्टेप्स क्या हैं? कोई भी एक्ट आसानी से, एक्ट कोई भी बनेगा, कहीं चाहे यहाँ बने चाहे पार्लियामेंट में बने, पहले तो वो प्रपोज होगा, फिर पार्लियामेंट में आएगा, लोकसभा में बातचीत करने के बाद फिर उसके बाद डिपेंड करता है माइनॉरिटी मेजॉरिटी कितनी है, अप्रूव हो गया, अप्रूव होकर के फाइनली फिर वो जाता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट उस पर साइन जब करते हैं वहाँ तक भी ठीक है, एक्ट हो गया. लेकिन एक्ट जब तक आप उसको डेट नहीं नोटिफाई करते कि इस तारीख से लागू होगा, तब तक एक्ट पड़ा रहेगा. प्रसार भारती एक्ट 7 साल तक ठंडे बस्ते में पड़ा रहा. क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट को पकड़ के रखना था, छोड़ना नहीं था. 7 साल बाद मुझे याद है, जिस दिन वो मिनिस्टर थे जो क्लचेस थे उनके पैर में, INV मिनिस्टर, जिस दिन कांग्रेस गवर्नमेंट हारी है, वाजपेयी गवर्नमेंट केम, इमीडिएटली अगले दिन से प्रसार भारती चालू एक्ट इन्होंने, बिफोर द लिविंग द हाउस दे सेड कल से शुरू हो गया. नाउ इमेजिन, इट्स लाइक दिस कि आपके घर के आगे एक ठक 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 4 कील ला के रख दें कि ये कल से ऑल इंडिया रेडियो है. अरे यार, अंदर स्टाफ है कि नहीं, अंदर प्रोग्रामर्स हैं कि नहीं, अंदर लोग हैं कि नहीं, अंदर प्रॉपर्टी है, कैमरा है, क्या है? और बाहर के लोग लगा दिए, दे हैव नथिंग टू डू विद इट. सो फॉर 3-4 years प्रसार भारती वाज वर्चुअली ऑन दिस एंड पीपल लाइक अस वर रनिंग द शो. दे हैड नो क्लू. उनको बताना पड़ता था, फिर उनको कहना, फिर बट अब वो बॉसेज हो गए आपके. सो ऑल दैट, एंड अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली आई वॉज इन द मिड्स ऑफ ऑल दोज थिंग्स. Though I took the best Kendra award, that's another story from the President of India. I made DD Sahyadri number 1 in the country अपने समय में 2001 या 2 में. But ultimately हो क्या रहा था, जिस पर्पज से प्रसार भारती आया था, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग जिसको हम कहते हैं, वो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग धीरे धीरे खत्म हो गई. So you will ask, what is a public service broadcasting and do we need a public service broadcaster today? So the answer is simple. Public service broadcasting caters to the citizens, caters to the, and commercial broadcasting, simple, consumers. So that means they are answerable to their stakeholders, they are answerable to their shareholders. I mean, I'm talking about the private broadcasters. So अगर वो कुछ कर रहे हैं तो they are okay, they are not wrong, sir, that is their job to do it. But I need to draw another line in front of them, which is a public broadcasting line. Because public broadcasters, apart from catering to citizens, it also caters to minorities. अगर कल कोई पारसियों का प्रोग्राम है तो उनके ऊपर छोटा सा कुछ फंक्शन है तो कौन करेगा? दूरदर्शन का ही काम है करने का, बाहर वाले को पैसा थोड़ी मिलना है. अगर समझिए आप कोई
और प्रोग्राम अगर कोई वर्क हो रहा है या माइनॉरिटी कम्युनिटी के अलावा किसी का रिलीजियस फंक्शन है, कोई एनीथिंग विच है कल्चरल है, आपके स्कूल में कोई फंक्शन है, प्राइवेट वाला क्यों अपना कैमरा भेजेगा? बट आई विल सेंड इट. सो दैट इज ग्रेजुअली डिमिनिश्ड. That public broadcasting of Doordarshan has gone for a toss. I don't think anybody of you are watching Doordarshan, let me tell you. You may be listening about it as a history, but you're not. And why should you watch? What is there for to watch? Because कुछ थोड़ा बहुत मटेरियल अगर करना भी होगा दूरदर्शन में पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग, तो चैनल्स आर डूइंग. इनफैक्ट इसी को देखते हुए आई थिंक 2007 या 8 में या अभी 11-12 में कभी इन्होंने एक ऑर्डर भी निकाला था जिसके तहत प्राइवेट चैनल शुड ऑल्सो प्रोड्यूस हाफ एन आवर पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग. तो कहने का मतलब है कि देन वाई आर वी हैविंग दिस वाइट एलिफेंट देयर? वाई द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मनी? अनदर पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर जिससे लोगों को सबक लेना चाहिए इज BBC. BBC का फुल फॉर्म कॉर्पोरेशन. तो वो BBC कैसे चल रहा है? अ पब्लिक ब्रॉडकास्टर विल रन ईदर, सी एक केक है पार्लियामेंट में बजट का, उस बजट के केक की कटिंग होती है, ये स्टेट्स के लिए हो गया, इसके लिए हो गया, अलग अलग एक छोटा केक का टुकड़ा उसमें से बजट में निकलता है पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग के लिए, जो इंडिया ने अभी तक नहीं किया. जो कुछ भी पैसा आ रहा है बतौर लोन जा रहा है प्रसार भारती को, नॉट बाई क्योंकि हक से मिलेगा तुमको. लेकिन उस लोन पर भी या करने पर भी सर पे तबला बजा रहे हैं, ये दिखाओ वो मत दिखाओ. तो किसी को गोदी मीडिया बोलते हैं, किसी को मोदी मीडिया बोल रहे हैं, जो कुछ भी है टोटली वो हो रहा है. सो जहाँ पर पब्लिक ब्रॉडकास्टर को इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए, जो BBC करता है. BBC लेकिन सपोर्ट क्या है उसको? डू यू नो दिस? व्हाट इज द फंडिंग ऑन BBC? शाबाश. हाउ BBC इज फंडेड? शाबाश बोलो. पब्लिक से. हाउ? ओके. 80s में और 80s के बिगिनिंग में, मेरे समय में, आपको याद नहीं होगा जब रेडियो जिसके घर में था, सर को पता होगा, लाइसेंस फी दी जाती थी 20 रुपये 15 रुपये रेडियो रखने की लाइसेंस फी, दैट यू हैव टू पे. ओके. ग्रेजुअली बात बढ़ी. वो चूंकि ब्रिटिशर से बहुत सारी चीज़ें हमने ली थी, इतने साल 200 साल रहे तो ये भी एक था. लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया अक्लमंदी? उन्होंने कहा कि लाइसेंस फी हाउ टू कलेक्ट इट. तो उन्होंने कहा कि जो कोई भी टीवी सेट खरीदेगा इंग्लैंड में, उसके साथ 100 रुपये का टीवी सेट है तो 10 रुपये की लाइसेंस फी अभी से ले लो मंथली. तो सो BBC इज रनिंग on the fund provided by the people on license fee. We don't have such. That's why they can afford to have a programming anywhere. See their documentaries, see their live programming, see their sports. A very successful public broadcaster, ABC another, Australian Broadcasting Corporation, another successful broadcaster. But our people are not learning lessons. I do not know because कुछ होता है ना कि कभी कभी आप किसी मरीज को मारना नहीं चाहते हो, जिंदा भी रखना नहीं चाहते हो, तो थोड़ा थोड़ा देते रहते हैं, फिर निकाल लेते हैं. वो हला हिसाब है. तो वो सर्वाइव कर रहा है बेचारा. क्यों कर रहा है भगवान जानता है. और सबसे बड़ी जो दुख की बात है, अफसोस होता है कि पीपल लाइक अस, देवर, तो खैर वी आर ऑल्सो ग्रेजुअली गेटिंग ओल्ड, वी कुड हैव सपोर्टेड देम. लेकिन नहीं. अभी वहाँ पर आपको मुझे बताओ, अगर एक प्रोग्रामर के नाम पर एक कोई फूड कॉरपोरेशन का बंदा बैठा है, या कोई रेलवे से बैठा है, या कोई कहीं से बैठा है, आप उसके साथ आइडेंटिफाई कैसे करोगे? आपके सब्जेक्ट को कैसे समझेगा वो, जो मैं समझ लूँगा 1 मिनट में कि यार ये तो 4 कैमरे से काम नहीं होगा, 5 लोग, तुमको 5 कैमरे लगेंगे इसमें, या तुमको यहाँ पर यूनिट में ये ऐसा नहीं करना होगा, ऐसा करना होगा, वहाँ पर तुम्हें ये नहीं मिल सकता. नहीं है लोग ऐसे. और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है. दिस इज अ सिंपल थिंग, बट दैट इज समथिंग विच हैज गॉन फॉर अ टॉस. सो लेट्स कम बैक टू 2000 का era when I had taken over as a director of the DDK. The first thing I did, and what I'm trying to say is, there was a taboo of certain programming. बहुत टेबू थे. एक किस्म का माइंड में ब्लॉक था कि ओह नो नो दिस इज सैक्रोसेंट, वी कैन नॉट डू इट. फॉर एग्जाम्पल आई सेड, हमारी अब भी कुछ ताकत है अगर दूरदर्शन की रह गई, बिकॉज यू डिड अ शॉट, यू नो अ शॉट, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट. आई डिड अ शॉट इन 2000 एंड आई सेड व्हाट इज द वीकनेस, तो मुझे मालूम है सारी है, स्ट्रेंथ कोई बाकी है मेरी. तो उन्होंने कहा सर एक स्ट्रेंथ है, वो है फोन इन. वी कैन स्टिल डू ऑल ओवर द कंट्री फोन इन प्रोग्राम, जो तब शुरू नहीं हुए थे. आई सेड बट ये तो जबरदस्त है. नो नो सर, बट पब्लिक कुछ भी बोल सकती है ना. आई सेड यार पब्लिक पे भरोसा रखो, बीच में फिल्टर लगाओ, कुछ तो करो, लेकिन जस्ट बिकॉज ऐसा होगा तो नहीं करेंगे. अच्छा, दूसरा क्या था कि गवर्नमेंट में एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि द मोर यू वॉक द मोर यू फॉल. जितना दौड़ोगे, चलो मुकेश शर्मा को प्रॉब्लम थी, उसको ज़्यादा चलने का शौक था, कोई प्रॉब्लम नहीं, गिरेंगे फिर उठेंगे, करेंगे, लेकिन बैठ नहीं सकते. बाकी लोग आते थे, अपना 2 टाइम बोलते थे पंच, 1 टाइम लंच करके घर चले जाते थे. ऐसे भी लोग रहे. सो व्हेन आई स्टार्टेड दिस, आई सेड नो, विल डू अ फोन इन प्रोग्राम.
And we did a filter, and then we started a Hello Doctor. We started the Hello Sakhi. We started this. आज 24-25 साल हो गए, उनके पास कोई हेलो सखी को रिप्लेस करने के लिए नहीं है. ऐसा क्या होता है? कोई नए आइडियाज नहीं है. एक मैं बना के गया, वही खत्म हो गया. आई डू नॉट नो, आई डोंट हैव द आंसर. कितना आप एक ही चीज को कितनी बार बेचोगे यार? इवन सेट्स यू विल नॉट बिलीव सर, दो सेट्स व्हिच आई डिड एट दैट टाइम दे आर देयर. जो मैं फोटो छोड़ के आया था वही है, बिकॉज वही चल रहा है. 2 टाइम पंच, 1 टाइम लंच. नोबडी इज इंटरेस्टेड. सैलरी मिल रही है, ठीक है. पेंशन अब नहीं मिलेगी बिकॉज प्रसार भारती हो गया, हम लोगों को तो मिल रही थी, बट दैट्स हाउ इट इज. सो कमिंग बैक देयर, देन आई स्टार्टेड फोन इन प्रोग्राम्स. तो फोन इन बहुत पॉपुलर हो गए, ओवरनाइट पब्लिसिटी शुरू हो गई. कोई एक पब्लिक में एक बंदा ऐसा नहीं मुझे मिला जिसने कुछ उल्टा सीधा बोला. और उससे फिल्टर भी करके उससे ही कहते थे यार तुम्हारी वॉइस जाएगी, प्लीज़ बी केयरफुल, तुम्हारा अपना चैनल है. मेरा ये कहना था पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लो ना यार. तुम ये मान के क्यों सकते हो सब चोर हैं? भरोसा भी तो करो. एंड दैट वर्कड लाइक एनीथिंग. सो वी डिड दैट थिंग. देन आई सेड कि यार कैन वी डू समथिंग, बिकॉज आई हैड अगेन स्ट्रेंथ. द स्ट्रेंथ वॉज दैट आई वॉज अ गवर्नमेंट ब्रॉडकास्टर. सो इफ आई से एनीथिंग ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, people will say, if I say this award is given to so and so, I said why don't we start some awards? I said महाराष्ट्र में इतना है तो नवरत्न अवार्ड शुरू हुआ. चित्र रत्न, नाट रत्न, संगीत रत्न, रत्न शारदा, रत्न वैभव, साहित्य रत्न, दुनिया भर के. एक पैसा नहीं आ रहा था, सडनली लोग लग गए उसको देने के लिए. ओके हाँ बताइए, गोदरेज एंड तक रहा. आई डोंट नो हाउ मच वी चार्ज, कितना 4 करोड़ से आई टुक द रेवेन्यू टू 40 करोड़. कैन यू इमेजिन ऑन अ चैनल लाइक दिस? बिकॉज यही सब प्रोग्रामिंग कुछ ऐसा नहीं था आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, उसी में से कर सकते थे. बिकॉज आई कैनॉट डू सोप्स, आई कैनॉट डू प्रोग्रामिंग और प्राइवेट चैनल्स आर डूइंग. मेरे तो दोनों हाथ भी बांधनी, पैर बांधनी और कैबी और रेस भी करो. सो आई हैड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. देन आई स्टार्टेड, दे केम टू मी, दे सेड, आई थिंक टाइम्स ऑफ इंडिया, कि वी वांट टू डू अ रैंप वॉक. तो कुछ उसमें अगर आपके आप कुछ महाराष्ट्रियन वो साड़ी करके सब करेंगे. मैंने कहा छोड़ो ना यार, सारी खूबसूरती जो है वो क्या बाहर से ही है, अंदर से भी तो होगी. सो देन आई स्टार्टेड हिरकनी. हिरकनी का पीछे रीजन क्या था? यू नो द स्टोरी ऑफ हिरकनी, शिवाजी महाराज के टाइम की. बस वुमेन ऑफ सब्सटेंस, और कुछ नहीं बोलेंगे. इवन सर आई वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ क्रिएटिंग दोज इमेजेस. साड़ी के बनेंगे, ऐसे बनेंगे. वही तो कर रहा हूँ, 1 से 10 तक मैं ही सोच रहा था. अफसोस ये है कि लोगों ने उस चीज़ को, मैंने ऐसा नहीं क्रिएट नहीं किया. आई क्रिएट अ सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, बट यू हैव टू यू नो गो अ लिटिल आउट ऑफ द वे टू परफॉर्म दीज ड्यूटीज. वो नहीं हुआ. एनीवे दीज अवार्ड्स वर डन, दे वर वेरी सक्सेसफुल. काफ़ी हो गया. उसके बाद now see how ideas come. My office is in Worli. I used to in Bandra, and I was going in my car, and suddenly I saw a board, Mahim के पास. It was written, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी LIC. सुना होगा आपने. इमीडिएटली ख्याल आया यार इस पर एक इवेंट बन सकता है. किस चीज़ के बन सकता है? द इवेंट कैन बी ऑन ऑर्गन डोनेशन. पब्लिक सर्विस है. फ़ोन किया वहीं से, गाड़ी में से एमडी को. आई न्यू द LIC एमडी. ऐसे ऐसे प्रोग्राम करने का मूड है ज़िंदगी के बाद भी इसका ऑर्गन डोनेशन का. वुड यू सपोर्ट इट एज अ स्पॉन्सर? फंटास्टिक मुखर्जी बोली क्या करना है? मैंने कहा कि लेकिन गाने उसमें क्या डाले? ज़िंदगी में प्यार करना सीख ले, जिसको जीना हो मरना सीख ले. ये गाने तो उस ज़माने के जो मुझे याद थे, तो आई कुड यूज़ दोस. फिल्म का बैकग्राउंड होने की वजह से दे सपोर्टेड. इट बिकेम अ हिट इमीडिएट. लेकिन इन्वॉल्व किया गवर्नमेंट की एजेंसीज को, सो दैट उसकी गरिमा बनी रहे, उसकी जो ट्रूथफुलनेस उसमें कोई ऐसा नहीं. एंड वी गॉट कैडवर से जिसने दिया डोनेशन, उनको लिया. लाइव जो डोनेट किए थे ऑर्गन्स, उनको लिया. दिस इज हाउ यू डू योर प्रोग्राम्स. आपके आसपास क्या हो रहा है उसी में से आपको मिल जाएंगी कहानियाँ. बट इट इज़ यू हु शुड लुक एट इट, राइट? सो दैट प्रोग्राम वॉज डन. देन वी डिड नवजोत सह्याद्री छे. मुझे लगा कि वैन जब ये अपने दुर्गा पूजा जब होती है जस्ट आफ्टर दिसंबर नवंबर के एंड में, दिवाली के आसपास, देयर इज लॉट ऑफ मनी इन द मार्केट. दिमाग लगाया कि यार लड़कियों को लेकर करो, बट यूनिसेफ को टाई अप करो. यूनिसेफ से क्या होगा कि वो लड़कियां ढूंढेंगे, हमारा काम और कुछ नहीं है, वी विल डू इट. बिकेम देयर वाज लॉट ऑफ फंड्स अगेन. कैन यू इमेजिन, जब मैं नवरत्न अवार्ड्स कर रहा था, आई हैड अ कॉल फ्रॉम CM's ऑफिस कि मुकेश जी इस बार इसको दे दें. आई सेड सॉरी सर, आई एम जस्ट, मैं तो कैटलिस्ट हूँ, क्रिया में भाग लूंगा, पूरा बाहर निकल आऊँगा. आई गॉट, लेकिन रिटायर्ड धर्माधिकारी थे, ये थे सब दुनिया के जो चीफ जस्टिस महाराष्ट्र में. दे वर द पीपल हु विल डिसाइड. मैं कह सकता हूँ सर ये भी एक है, आया है, देख लीजिए. नहीं है तो नहीं. तो दैट यू नीड टू बी, कहते हैं ना, अबव सीजर्स वाइफ. यू हैव टू बी अबव ऑल दैट, सो दैट नोबडी कैन पॉइंट आउट फिंगर. बिकॉज ये भी बहुत जरूरी था, बिकॉज वेर यू आर सिटिंग, लॉट ऑफ क्रिएटिंग एनिमीज ऑल्सो. बहुत लोगों की दुकानें बंद हो रही थी यार, बहुत लोगों की शुरू भी हो रही थी. तो ये सब चीज़ों का रहता है. बट ग्रेजुअली एज यू ग्रो अप, एज यू ग्रो ओल्डर, एज यू ग्रो, चाहे प्राइवेट में काम करो चाहे इंडिविजुअल करो, इन सभी चीज़ों का याद रखना होगा. और एक सबसे बड़ी चीज़ है, हाउ नॉट टू डू थिंग्स इज अ ग्रेटर लर्निंग देन हाउ टू डू थिंग्स.
कैसे ना करें, क्या ना करें कि ये गड़बड़ नहीं हो. How not to speak is a greater learning than how to speak sometimes. These are the things, if you start, imbibing in yourself, taking up, it should help you in your career, as I see. Then there is something interesting also, sir. It happened. शाम का समय था. Let me tell you like a story. हल्की हल्की बारिश हो रही, जुलाई का महीना था. बत्तियां जल चुकी थी रोड पर. आकाश हल्का नीला था, लेकिन बारिश भी हो रही थी. इतने में एक फ़ोन आता है और मैं फ़ोन उठाता हूँ. शर्मा जी बोल रहे हैं? जी, पुलिस कमिश्नर हेमंत सिंह बोल रहा हूँ. मैंने बोलिए सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ अभी तुरंत. क्या हुआ? मैं आपको बताता हूँ. मैं निकलने वाला था. नहीं आप अभी जाइए मत, आप रुकिए. ओके, पुलिस कमिश्नर का फ़ोन आ गया. क्या हो गया भाई, समझ में नहीं आया. अगले 15 मिनट में ही वॉज हैविंग सम सीनियर सिटीजन की मीटिंग. मैंने कहा हाँ बोलिए मिस्टर सिंह. द सेम गाय जिन्होंने अंदर किया था किसको, संजय दत्त को. ही वॉज द पुलिस कमिश्नर. ओके, क्या हुआ? 7 बजे की बातमियाँ मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट बातमियाँ थी. 7 o'clock की न्यूज़ जो होती थी, बड़ा उसमें पैसा आता था. यानी वी वर चार्जिंग समथिंग लाइक 50,000 फॉर 10 seconds एट दैट टाइम. एंड आई हैड नो टाइम टू गिव एनीवन बिकॉज आई वॉज वेरी क्लियर कि न्यूज़ का कंपोनेंट अगर उसमें मान लो 2 ही मिनट का एडवर्टाइजमेंट 2 के ऊपर नहीं जाएगा. आई पुट माई फुट डाउन. बाकी न्यूज़ को विल नॉट डिस्टर्ब, पैसा और नो पैसा. एंड आई कुड अफोर्ड टू डू दैट बिकॉज गवर्नमेंट का बड़ा क्लियर था कि डायरेक्टर विल हैव हिज से इन सच मैटर्स. आई कुड डू इट. एंड ऑल्सो न्यूज़ वॉज इंडिपेंडेंट, प्लीज अंडरस्टैंड. सो दे वुड ऑल्सो लाइक इट कि यार शर्मा जी इस मामले में बड़ा अच्छा, पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं, न्यूज़ कम कर रहे हैं, काटते जा रहे हैं. सो व्हेन ही केम ही सेड आई वांट टू बी ऑन द बातमियाँ 7 o'clock. ये करीब 5:30 पौने 6 का टाइम था, 6 बजे 6:15. मैंने कहा कि सर पर वहाँ तो फिर हो गया, अभी तो सब रेडी है वहाँ. नो यू डू नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग. आई सेड क्या हुआ? बोले एक रूमर उड़ गई है कि मुंबई गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इज अरेस्टिंग बाला साहब ठाकरे. और बोले पथराव शुरू हो गया है, शटर्स बंद हो रहे हैं, देयर इज अ chaos इन द सिटी and we need to immediately bring down that chaos. I am talking about the fake news and the real news, however, at that time. तो I said, बोले मुझे किसी भी तरीके से अंदर जाना पड़ेगा. And he said कि मैं अपने ड्रेस भी लाया हूँ साथ, तो let me wear it, because जहाँ थे तो वो ड्रेस पीछे उनका लेके आया ऑर्डरली मेरे रूम में, एंटी रूम में चेंज वेंज करके. I said, okay, this is something which, तो कुछ एड्स हमने कम किए because to give time करके, and I got it. To cut the long story short, he just said there is nothing like this, we are not doing anything. ऐसा कुछ नहीं है. Because the problem was the Home Minister was Mr. Bhujbal at that time. So he took this decision on his own and Vilasrao Deshmukh had no clue about it. So the CM said कि यार ये क्या गड़बड़ होने गई है, ऐसा क्यों हो रहा है? And when he came there in his dress, when he said authoritatively, we are not doing, nobody is doing anything about it, कुछ नहीं है. रात में 9 बजे मुंबई आराम से सो गई थी. तो एक जब when the society is not fragmented, please understand, then you can try and bring lot of things under one umbrella. But when the society is fragmented, then this will not happen. 80s में क्या था? एक चैनल था, एक रामायण हो रहा था, एक महाभारत हो रहा था. लोग ट्रेन में जाते थे, बस में जाते थे, बात कर रहे हैं तो दे हैव अ कॉमन थिंग टू डिस्कस. अरे भाई कल अयोध्या में राम पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, तुम्हारा क्या ख्याल है? महाभारत हो रहा है तो बुनियाद हो रहा है तो बुनियाद में ललिया राम को क्या हो गया? सोसाइटी एक थी, टूटी नहीं थी. और आगे बढ़े, घर में 2 टीवी आ गए, मेट्रो अलग चलने लगा, नेशनल अलग चलने लगा. बच्चों को मेट्रो पसंद आया, थोड़ा सा अप क्लास था. ओके, और आगे बढ़े, डीटीएच का भी एक कहीं से आ गया आपके पास. डीटीएच में केबल वाला आया, केबल वाले ने अपना एक वायर लगा दिया आपको, तो आपके पास टेरेस्ट्रियल भी है. धीरे धीरे टेरेस्ट्रियल बाहर होने लगा, केबल के थ्रू सब आने लगे. अब घर में 2-3 टीवी हो गए, घर ही फ्रेगमेंटेड हो गया, घर के अंदर फ्रेगमेंटेशन शुरू हो गया. नो आई वॉन्ट टू वॉच दिस, नो आई वॉन्ट टू वॉच दिस. होते होते सीन ये आ गया कि जब ये छोटी सी चीज़ आई, खतरनाक चीज़ बोलता हूँ इसको मैं, जिसका नाम मोबाइल है, ये जब हाथ में आया, सो देन सारा कंट्रोल जो हमारा था सब खत्म हो गया. नाउ इट्स टू एवरीवन. सो द थिंग इज दिस, एंड लेट मी टेल यू, मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव बीन born आफ्टर 2000 और अराउंड द सेम टाइम. आप लोग और आपसे पहले की जनरेशन जो मिलेनियल्स है, उनमें ही काफ़ी फर्क है. हम तो और भी पहले के, तो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा कोई. आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपका इतनी इन्फॉर्मेशन है कि आप उसको एसिमुलेट नहीं कर पा रहे, उसको आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, आप उसको बाहर नहीं निकाल पा रहे. क्या करूं, अभी ये हुआ, ये आ गया, ये हुआ, तो वो सब अब सुपरफिशियल हो गई. आपका शरीर एक चिकने घड़े की तरह हो गया, इन्फॉर्मेशन आके निकल गई, कुछ एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही. वो तभी संभव है जब आप थोड़ा सा पास्ट में जाएंगे. व्हेन यू गो बैक, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे साइंस हो, चाहे ज्योग्राफी हो, सी व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट, ट्राई एंड देन कम आउट, because there is a lot of learning from the past.
ये ऐसे क्यों हुआ? हमारे टाइम पर डू यू नो, आज की तारीख में अगर आप फिल्म मेकर्स नहीं है, अगर फिल्म मेकर होते हैं जो भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट यू हैव अ वीडियो के सामने दिख रहा है ना क्या होने वाला है. आई वाज शूटिंग अ फिल्म सर इन कानपुर जू, द फिल्म विच गॉट अ नेशनल अवार्ड ऑल्सो फॉर मी, अ चिल्ड्रंस फिल्म. उसकी मास्टर क्लास में अलग लेता हूँ. हाउ नॉट टू मेक अ फिल्म इज दैट, हाउ टू मेक अ फिल्म, सुभाष घई विल टेल यू. तो उसमें एक शॉट आना था, बच्चा भागता हुआ आता है और कबूतर उड़ जाते हैं बहुत सारे. एंड दैट ओल्ड लेडी सिटिंग है कि उस कहता है अम्मा ये उड़ क्यों गए? बोले इसलिए कि तुम भाग के आए. तो बोले अगर आएंगे वापस? हाँ. बोले दाना डालोगे तो आएंगे. इतना शॉट था, वो शॉट लिया. उसके बाद ये हुआ लाइट कम हो गई, यार बंद करो चलते हैं. देन वी लेफ्ट इट. फिर उस लोकेशन पर बाद में हम 4-5 दिन के बाद आए, 6 दिन के बाद आए आगे के सीन्स के लिए. तो जैसे ही शुरू हुआ शॉट वैसे ही कैमरा वो आया, ड्रेसमैन. दादा वो ब्लू स्वेटर था, लाल नहीं. भाई देखो चेक करो ब्लू स्वेटर. अभी कोई वी डोंट हैव एनी वीडियो, वी डोंट हैव एनी फोटोग्राफ, बिकॉज एवरीथिंग वॉशिंग के लिए गया, आएगा धुल करके जब लैब से तब देखेंगे. असिस्टेंट से पूछा क्या था? नहीं सर ब्लू था. वो रेड वो ब्लू. डायरेक्टर कंफ्यूज, क्या करेगा अब? कंटिन्यूटी की तो ऐसी तैसी हो रही है ना. एक काम करो, कॉमन सेंस, एक ब्लू में ले लो, एक रेड में ले लो, आगे चलो, देखेंगे टेबल पे जाके क्या है. दिस इज हाउ वी वर्क. सिंपल सी. क्योंकि आपका जब माइंड्स आर लाइक पैराशूट माय डियर फ्रेंड्स, दे ओनली फंक्शन व्हेन दे आर ओपन. अगर बंद होंगे तो नहीं होंगे. तो तुमको आज क्या हो रहा है कि तुम्हारा अपना जो ग्रे मैटर है वो काम ही नहीं करने दे रहा है. हर चीज पकी हुई आ रही है. तुम सोचो कि यार उसको मैं बनाऊं कैसे? ये रेसिपी है, बनाइए ना. मैं इसको ये ऐसे खाइए ना. थोड़े समय के लिए इसको अलग कर दो. इसको अलग करते हैं तो तोते में जान होती थी ना पहले ज़माने में. वो है तुम्हारे हाथ से जान निकल जाएगी अगर तुम्हारे हाथ से ले लिया जाए, रख दिया जाए कहीं और. सारी जान इसमें. तुम क्या, हमको लगता है हम इतने डिपेंडेंट हो गए हम इस पर? बट हो क्या रहा है कि हम डिपेंडेंट है, हमारे हिसाब से हम लाइन खींच सकते हैं. तुम लाइन नहीं खींच पाओगे अगर तुम थोड़ा सा पास में ड्वेल नहीं करोगे, जानोगे नहीं कि क्या है. Then only you can come out and be a better journalist, better writer, better thinkers, better performers, better programmers. Right? Okay. So we have told you a little role of Prasar Bharati has nothing right now except this, that Prasar Bharati is there, but nothing. Public broadcasting is more or less dead in this country. If you ask me, nothing is happening. In fact, आज ही किसी ने मुझे भेजा था that now Prasar Bharati is starting an OTT. By the way, OTT का full form क्या है? What do you mean by over the top? यहाँ आ गया तक गए ना. ओवर द टॉप तो हर आदमी कहता, ओवर द टॉप वो था. ओवर द टॉप का सिंपल सा मतलब ये यार कि अब तक सिग्नल पहले तो आते थे आपके एंटेना से, फिर आपके आने लगे केबल से, फिर वो डायरेक्ट एक आपने पतीली रख दी जिसमें खिचड़ी बनती है उससे, यानी DTH से, उससे आने लगे. अब आपने उसको भी बाईपास किया, आप सीधे डायरेक्ट ले रहे हैं अपने सेट टॉप बॉक्स पर और वाईफाई से ले रहे हैं घर के अंदर से. सो ओवर द टॉप मीन्स यू आर गोइंग ओवर द टॉप ऑफ ऑल दिस. दैट इज हाउ OTT. नाउ why OTTs are successful today? Can you tell me why? शाबाश. क्यों सक्सेस, क्यों देखते हो OTT? चलो क्यों देखते हो? एक और एक सबसे बड़ी चीज है, उस पर सेंसर जैसी कोई चीज नहीं है अभी. समझे ना? जो सबसे बड़ी बात है कि आनंद इस बात का है, कोई बता नहीं रहा क्या देखना, क्या जो आ रहा है हम देखेंगे. ठीक है, नो प्रॉब्लम. अब सवाल ये कि देन हु विल सेंसर और हु विल से दैट दिस इज गुड और दिस इज बैड. एक ज़माने तक इंग्लैंड अमेरिका में कहाँ कहाँ तो न्यूड बीचेस हैं, वो भी बोर हो गए लोग. हमारे यहाँ लोगों को ये सब नया नया लग रहा है चीज़ें अभी देख करके कि यार ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये ऐसा हो रहा है. सो द थिंग इज दिस कि इवन द इट्स वेरी गुड बिकॉज वही ये मैं जो समझता हूँ साढ़े सर, ये मंथन का दौर है. विष भी निकल रहा है, अमृत भी निकल रहा है. अब सवाल ये है कि मैं कैसे चयन करूँ विष क्या है अमृत क्या है, ये मेरी प्रॉब्लम हो रही है. और मुझे किसी ने पास में बताया नहीं क्योंकि उसके सामने निकले नहीं था ये सब, विच इज़ मी. तो यू विल हैव टू देन बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर वॉचिंग एंड हाउ यू आर वॉचिंग. देयर आर सम वेरी गुड प्रोग्राम्स देयर आर ऑन OTT ऑल्सो. कौन सा OTT तुम लोग देखते हो? विच OTT यू वॉच्ड? मोस्टली नेटफ्लिक्स, Z5 हैं? Which one? And tell me one thing, how much content are you consuming on your hand and how much on television? 90% हाथ में ही कंज्यूम कर लेते हो, जरूरत नहीं पड़ती टीवी तक जाने की. जब तक कोई बैठा ले नहीं घर में, मदर फादर बैठो जरा सा देखना क्या है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं यार, सब तो आ रहा है. तो कहने का मतलब है जो तुम्हारे हाथ में आ रहा है, तुम्हारी चॉइस का आ रहा है, तुम्हारे हिसाब से आ रहा है, जब तुम्हें चाहिए. जब तुम्हें नहीं चाहिए तो वहीं रुक भी जाता है.
अनलाइक टेलीविजन, जो टेलीविजन में रुकता नहीं था, वन वे था, इतनी सारी चीज़ें हैं. सो दैट मीन्स यू नीड टू मेक यूज़ ऑफ इट वेरी वेरी जुडिशियसली. बहुत सोच समझ के तुमको कंटेंट को कंज्यूम करना है, बिकॉज कंटेंट कंजम्पशन इज ऑल्सो एन आर्ट. इतनी सारी चीज़ों में यू मे बी मिसिंग लॉट ऑफ थिंग्स जो कि तुम्हारे मतलब की हो सकती हैं. सो बेस्ट वे इज एक दूसरे के साथ चर्चा करके, यार अच्छा कंटेंट अगर आया, कहाँ आया. हाउ मेनी ऑफ यू सीन डेजिग्नेटेड सर्वाइवर? हाथ उठाओ, देखो, लिखो उसको, कभी मौका लगे. बिकॉज पूरी ऑफकोर्स नेटफ्लिक्स पर है, ख़त्म भी होने वाला है, लेकिन जो उसकी स्टोरी आइडिया, इट इज़ मार्वलेस. आई डोंट वांट टू टेल यू, मौका लगे तो देखो उसको. तो देर आर फालतू के कंटेंट से रादर स्पेंड सम टाइम ऑन अ गुड कंटेंट विच शुड ऑल्सो गिव यू एन आइडिया कि यार मैं भी कुछ ऐसा क्रिएट कर सकता हूँ. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे you want to become only an anchor, or you want to become a reporter, or you guys want to become, I would say, a script writer or something? No, you have to be a multiple whole, a whole which has everything in it. वो तभी संभव है जब तुम कुछ बाहर की एक्स्ट्रा प्रोग्रामिंग देखोगे, समझोगे, जानोगे, रादर देन वॉचिंग फालतू के. क्योंकि उसका रीज़न क्या है कि उस प्रोग्रामिंग में हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है, एक बड़ी समस्या जो आ रही है कि इज रियल लाइफ copying the real life or the real life is copying real life? What is happening? What is happening? Tell me. नहीं सर, दोनों चीज़ें हो रही हैं. आपको बताऊं कैसे. सीन यह है कि अभी हाल में मैं एक कोई प्रोग्राम देख रहा था, एंड मैंने आई थिंक आई आस्क्ड समवन, आई सेड कि व्हाट, एक कोई प्रोग्राम था इसमें कि प्रॉब्लम क्या आ रही है कि फिल्म मेकर से बात करो, प्रोग्राम प्रोड्यूसर से बात करो, तो वो कहते हैं पब्लिक यही चाहती है. बड़ा सिंपल सा है. पब्लिक से कहो, बोले हमको फालतू का चाहिए नहीं, लेकिन कुछ नहीं आ रहा था, क्या करें. आप समझे ना. तो अब जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी आपकी ज़्यादा है, उसकी कम है. उसको तो पैसे बनाने हैं. आपकी जिम्मेदारी है कि यार हम नहीं देखेंगे इसको, नहीं देखेंगे इसको, नहीं देखेंगे. एक दिन अखबार पढ़ लेंगे, किताब पढ़ लेंगे, मैगजीन पढ़ लेंगे, नहीं देखेंगे, चलो ये फालतू का. जब आप ऐसा शुरू करेंगे, देन व्हेन यू स्टार्ट पुटिंग ऑन, आपकी मेजॉरिटी नहीं है, मान लिया माइनॉरिटी में है, आप थोड़े ही हैं, लेकिन कुत्ता भी जब बैठता है ना तो अपनी जगह साफ करके बैठता है. आप साफ कर सकते हैं जगह को. तो मेरा ये कहना है कि क्योंकि ऐसे किस्से भी आए जहां पर उसने कहा उसने मारा, ऐसा किया, बोले ऐसा, वो देखा था सीरीज, इंस्पेक्टर देखा था या फलाना देखा था, उसको देख के उसको आइडिया मिला. तो वहां पर रियल लाइफ को कॉपी कर रहा है. बट टेक्निकली स्पीकिंग, हम और आप अगर इसको, इनका बहिष्कार नहीं करेंगे, इनको अपने से अलग नहीं करेंगे, ये बनाते रहेंगे ऐसे प्रोग्राम, और ये पैसे बनाते रहेंगे, आप मूर्ख बनते रहेंगे. एक कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग आती है, मैं कहानी, अच्छा हाँ, कहानियों पर बात आ गई. मेरी एक आप लोगों से सबसे कर माने हाथ, बद्ध माने जुड़े हुए, एक प्रार्थना है. आप छोटी छोटी जो ऐसी कहानियां हैं जिनसे कि कुछ, इफ यू कैन लर्न समथिंग, आपको बहुत हेल्प करेंगी. मेरी बात मानिए. मैं ऐसे दौर से गुजरा हूं जब मेरे ऊपर ग्रहण लगा था. मैंने ऐसे ग्रहण लगा था, मतलब आई वाज आल्सो अंडर सम स्ट्रेस, सम प्रॉब्लम्स इन माय ओन सेटअप. जैसा मैंने आपसे कहा, जो चलेगा वही गिरेगा, तो वो सब भी था. बट आई सर्वाइव्ड बिकॉज आई लिसन टू दीज स्टोरीज एंड आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड कि यार जब ये हुआ है तो क्यों नहीं होगा. लेटेस्ट एग्जाम्पल देता हूं. एक सारस का जोड़ा, सारस समझते हो, स्टॉक्स, हंस का जोड़ा, चलो कर लो, इजी हो जाता है. हंस का जोड़ा अपनी जगह को छोड़ करके एक दूसरी जगह आता है जहां पर कि रेगिस्तान है, कुछ नहीं है, पानी नहीं है, और एक पेड़ है. और हंसनी कहती है कि हम कहाँ बेवकूफ़ी की जगह आ गए, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, देयर इज़ नथिंग हियर. पानी भी नहीं है, हवा भी नहीं है, क्या सूखी जगह है, ये ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ है नहीं. तब तक ऊपर एक उल्लू बैठा था, और वो उल्लू बोलने लगा कुछ. तब तक वो वाइफ बोली कि यहाँ पर से उल्लू ही बसते हैं, ऐसे वीराने में और कौन बसेगा. बात ख़त्म हो गई. सुबह हुई तो उल्लू नीचे उतर के आया. उसने कहा कि इन लोगों ने कहा, अरे हमें पता नहीं था आप ऊपर बैठे हैं, लेकिन उसने कहा भाई मेरी वजह से तुमको तकलीफ हुई, मैं क्षमा चाहता हूँ. तो उसने कहा कि हाँ ऐसी कोई बात नहीं है. वो बोला हंस, और चलने लगा. तो उल्लू पीछे से बोला, हेलो, मेरी बीवी को कहाँ ले जा रहे हो, हंसनी को कहाँ ले जा रहे हो. तो उसने कहा आपकी बीवी. बोले हाँ मेरी बीवी है, तुम्हारी नहीं. अरे मेरे साथ आइए. हेलो, मेरी बीवी है, कन्फ्यूजन मत करो. झगड़ा बढ़ गया और बढ़ गया. गांव वाले इकट्ठे खड़े हो गए, पंचायत आ गई वहाँ पर सडनली. अब पंचों के सामने डिसीजन लेना था बीवी किसकी है. तो पंचों ने आपस में बात की कि देखो भाई, हमको रहना तो उल्लू के साथ ही है, ये तो चले जाएंगे यहाँ पर,
तो मेरे ख्याल है उल्लू के हक में फैसला करते हैं। उसने का फैसला किया पंचों ने कि सारस जो है उसकी हंसनी वो उल्लू के साथ ही रहेगी, इसकी पत्नी है। अब बेचारा सारा क्या करता, हंस चलने लगा। तब तक इसने आवाज़ लगाई, हेलो 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 मिस्टर सुनो सुनो। बोले अब क्या चाहिए यार, मेरी बीवी रख ली, अब क्या चाहिए तुमको? बोले नहीं बीवी तुम्हारी है, तुम लेके जाओ। मैं सिर्फ ये साबित करना चाहता था कि इस गांव में यहाँ पर सिर्फ उल्लू ही बसते हैं जो डिसीजन लेते हैं, और यही हम करते हैं इन द चॉइस ऑफ अ सिलेक्शन ऑफ ए क्या बोलते हैं अपना उम्मीदवार जिसके लिए वोट दे के आए हैं। ये हमारी जात का है, ये हमारे धर्म का है, ये हमारा है, तो उल्लुओं के भी साथ ही ना हमारी। इस कहानी को सुनने के बाद शायद एक बार जब आप वोट देने जाते तो सोचते कि हाँ यार ये जरूरी है कि मैं अपने इसको दूं। ये कहता हूँ ये कहानियों का फर्क है। पढ़ो, ऐसी छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी। मेरा एक चैनल भी है जिसका नाम है कहानियों का अनोखा अंदाज। मैं सुनाता अपने अंदाज में हूँ, और वो कहानियाँ ये अभी MIT में परसों से एंडोमेंट लेक्चर सीरीज शुरू हो रहा है, और मैंने ऐसे ही उनसे कहा था कि हर लेक्चर के पहले कहूँ लेक्चर इतने हैवी हो जाते हैं ना कि बच्चे लोग यू कैन सी दैट लिटरली कोई मोबाइल से खेल रहा है, कोई यहाँ से खेल रहा है, और मुझे कैमरे बचाने पड़ते हैं, वहाँ मत लगाओ, इधर लगाओ, उधर लगाओ। लोग हंसेंगे क्या हो रहा है, बंदा बोल रहा है, सब कैमरे में लगे हुए हैं, जैसे भाई साहब लगे हैं अभी। तो सीन यही है। हेलो, मैंने कहा जैसे भाई साहब लगे हैं, आप ही से मुखातिब हूँ मैं। अच्छा ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि ये छोटी छोटी जो कहानियाँ, जैसे इसीलिए एक दौर था जब पंचतंत्र की कहानियाँ या आपके बुद्ध की जातक कथाएं क्यों लोग जानते थे, क्योंकि वो जिंदगी भर आपके साथ चलती थी। हर चीज़ में आपको यू हैव टू गो बैक एंड जस्ट टू आस्क दस कि इसमें क्या सबक था, अरे यार ये डेंजरस वाला, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। डू दैट, दैट विल ऑल्सो गिव यू लॉट ऑफ थिंग टू थिंक ऑफ योर ओरिजिनल कंटेंट फ्रॉम दैट। हैं तो यार वही 7 सोरी है ना, सारे गाँव पता नहीं सा गाने इतने सारे कैसे बन जाते हैं, म्यूजिक कैसे बनता है वैरायटी में, है तो वही सुर डो रे मी, लेकिन बनता है बिकॉज सोचने के लिए, वो सोचने पर करो। आज की तारीख में ओरिजिनल कंटेंट कम मिल रहा है, कट एंड पेस्ट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। ओके, अब इसके अलावा बाकी चीज़ों पर मैं सोच रहा था, लेकिन क्या बताऊं, वर्चुअल रियलिटी तुम्हें पता है, ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में तुम जानते हो आज की तारीख में, सोशल मीडिया के बारे में मैं तुम यू गाइज हैव एवरीथिंग। बट मैंने सर को बोला है कि मैं एक दिन आकर के I will do a workshop with you, how to write news, how to assemble news, how to disseminate news, right? And we will do it, और वो उसमें शाम तक होते होते we'll see that we have some content ready। क्योंकि एक चीज़ याद रखना है, गुरु मंत्र ऑफ कोर्स इससे हट के है, लेकिन है तुम्हारे सब्जेक्ट मैटर से, टेलीविजन से, कि कोई भी स्टोरी जब बनाते हो तुम न्यूज़ की, चलो यही स्टोरी है, मैं यहाँ आया, अब इस स्टोरी में इनके पास नॉर्मली ये कि लगा हुआ है, मुकेश शर्मा बोल रहे हैं और इन्होंने नोट कर लिया, ठीक है सर, खत्म हो गई बात। जिसको इंटरेस्ट होगा सुन लेगा। इसी को थोड़ा और इंटरेस्टिंग अगर हम बनाते तो मेरे आने के पहले, समय का अभाव है लेकिन आई एम जस्ट नाउ हाइपोथेटिकल, आई एम जस्ट थिंकिंग हाउ कैन वी गो हेड। तो मेरे से एक सवाल होता है, सर आप यहाँ पर आए, कैसा लगा आपको हमारा सेटअप ये? उसके पहले, मुझसे पहले कोई एंकर ऑलरेडी पहले खड़ी हुई कह रही है, हाय टुडे वी हैव अ न्यू पर्सन हु इज गोइंग टू बी हियर, हिज नेम इज सो एंड सो एंड ही इज विजिटिंग अ प्लेस, लेट्स सी व्हाट ही हैज टू से। कट टू अनदर पर्सन, उसने कहा भाई कैसा लगा आपको सर, क्या नाइस प्लेस, काफी क्या क्या है यहाँ पर, बात हुआ। तब तक सर से कहीं बात, सर से इंटरेक्ट हुआ, सर से ये करते कराते भूमिका बन गई, अंदर आ गया। अंदर आ गया तो अंदर अगर हम सिर्फ रिकॉर्ड कर रहे होते, कुछ आदमियों से बात होती है, हाउ इज द स्टूडेंट, अरे यार पूछो, उसको बोलते हैं वॉक्स पॉप। तो 5 चीज़ें होती हैं जो आपको डालनी पड़ती हैं किसी भी न्यूज़ की स्टोरी को अच्छा बनाने के लिए। एक है वॉक्स पॉप, एक सवाल कई जवाब, हाउ इज द प्राइम मिनिस्टर मोदी, बहुत फंटास्टिक, गड़बड़ कर रहा है, देश कट रहा है, नहीं, एक सवाल कई जवाब आपकी कहानी में होना चाहिए, व्यूज़ मिलने चाहिए मुझे। दूसरा इंटरव्यू, जहाँ पर एक आदमी कई सवाल, आदमी एक है, सवाल कई। तीसरा है आपका एंकरिंग जो आप करते हैं। चौथा है पीस टू कैमरा जो आपने सीखा होगा, ओपन पीस करना है, क्लोज पीस करना है, कैसा करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है उस पीस टू कैमरा से। और फिर वॉइस ओवर तो आप करते हैं। अगर ये 5 चीज़ें आपकी स्टोरी में हैं, चाहे वो ड्राई से ड्राई, वो अट्रैक्ट करेगी करेगी, लेकिन आपने ठोक दिया सीधे कि यार लगा दो कैमरा, वॉइस ओवर कर दो, बोल दो, तो जमेगी नहीं। क्या समझे? सो ट्राई एंड बी एज नेचुरल, एज डिफरेंट, एज ओरिजिनल। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि 3 चीज़ें आती हैं, एक है इमेजिनेशन, एक इमेजिन, 2 और हैं, आई से मुझे अभी याद नहीं आ रहे, बट आई एम जस्ट सेइंग कि वो अगर आप इंजेन्युइटी, इमेजिनेशन, एक और 3, सो इफ यू डू दैट योर कंटेंट हैज़ टू बी डिफरेंट, इट हैज़ टू बी ओरिजिनल, राइट। नाउ
दाते सर, मैं और क्या चाहिए वो दाते कह रहा हूँ साढ़े सर, एनीथिंग एल्स यू वांट मी टू टेल यू? तो सारी चीज़ें मैं लेके तो आया था, बट आई थॉट ऑल दीज थिंग्स यू हैव एनी क्वेश्चंस आई वुड रादर टेक। टेलीविजन का फ्यूचर सर, व्हाट आई कैन सी राइट नाउ इज, ये मेरा फ्यूचर है जो यहाँ बैठा है, इनसे पूछ लो, ये बता देगा टेलीविजन का कोई फ्यूचर नहीं। गलत हूँ? एम आई रॉन्ग? टेल मी, बिकॉज नो बडी ऑफ यू वॉचिंग। यार तुम्हारी संतान कल आएगी, उनको तो बता भी नहीं पाओगे टीवी कैसा होता है। जैसे हमसे पूछते थे, अच्छा ऐसा कोई फोन होता है, ऐसे चला देंगे, वैसा होगा, क्योंकि तुम देख ही नहीं रहे ना, तुम्हें तो इस पर सारा खेल इस पर हो रहा है यार। तो टेलीविजन का कोई फ्यूचर, टेलीविजन स्क्रीन, हाँ ये सारी चीज़ें टीवी स्क्रीन तक ही नहीं जा रहा है यार। स्क्रीन तो है तुम्हारे पास, कंज्यूम हो रहा है ना यहाँ पर, इसी में तुम बड़ा वो ले लो, कुछ और कर लो, खेल लो, लेकिन तुम टीवी के पास जाके बैठने वाली नहीं। तो टेलीविजन की जो कैरेज है, दैट कैरेज दिस विल बी देयर, बट टेलीविजन का कंटेंट जो है दैट्स अ डिफरेंट थिंग। द कंटेंट विल बी ऑलवेज डिफरेंट फॉर द सिंपल रीजन, और वो टीवी के लिए बनाओ कि ओटीटी के लिए बनाओ कि हैंडहेल्ड डिवाइस के लिए बनाओ, दैट हैज टू बी एनीथिंग, या 70 mm स्क्रीन के लिए बनाओ। सो टेलीविजन पर से नहीं, मेरी जनरेशन के बाद बैठने वाले लोग मुझे आई डाउट बहुत कम। यहाँ स्पोर्ट्स आ गया, कभी लाइव चल रहा है, पर वो भी तुम क्या करते हो, शुरू तो वहीं से हो जाते हो ना, वहीं यार स्पोर्ट क्या चल रहा है, तो मोटा समझ में आ गया रखो इसको, क्योंकि उधर भी देखना है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ के इतनी सारी चीज़ें तो मैं कंज्यूम करने का, अगले टीवी क्या कंज्यूम करोगे? गलत कह रहा हूँ? हाँ का मतलब ना, या ना का मतलब हाँ? हाँ हाँ बोलो। आपको ऐसा लगता है कि मतलब अगर टेलीविजन का कंटेंट अगर सुधर जाएगा तो आज की जनरेशन भी उसमें पढ़ सकती है? देखो मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, कैरेज की बात कर रहा हूँ कि टेलीविजन कंटेंट सुधर गया तो देखेगा तो इसी पर ना सर। अगर मुझे पता नहीं, तुम्हारा सवाल यह है कि इसकी बात कर रहा हूँ कि ये फ्यूचर क्या होगा, या इसके अंदर से जो निकल रहा है उसके दोनों हाँ, तो एंगेजमेंट, जहाँ एंगेजमेंट की बात है वहाँ अब नहीं, वो खत्म ही हो गया ना। तुम यार 2000 की जो परवरिश है, जो लोग यहाँ पर आए हैं, AM से तो उनके बाद कौन देखेगा? यही तो फ्यूचर है ना। तो अगर यही नहीं देख रहा है तो मैं किससे बोलूँगा? मैं और तुम्हारे देखने से क्या होगा? और टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने भी टाटा स्काई उड़ा दिया, मेरे घर में नहीं। आई एम ओनली वॉचिंग स्मार्ट टीवी ना। क्या जरूरत है? क्यों भाई? क्योंकि मुझे सारे चैनल मिल रहे हैं ना वहाँ पर, और मेरे सबसे बड़ी बात है मेरे कंफर्ट लेवल पे मिल रहे हैं। मैं मॉन्क देख रहा हूँ आजकल, आई एम ऑन द 8th सीजन, तो मैं अपना आराम से कर रहा हूँ। तो मैं तो हाँ सर, मैं तो मेरा और कोई मेरे ऊपर कोई बुरी आदत ही नहीं है सिवाय बिंज वॉचिंग। हाँ बिलीव मी, जब ये आया था, कोविड हुआ था, यू नॉट बिलीव, एक टीवी हमारा फूक गया था, उसमें धुआं निकलने लगा था, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूस चल रहा था। फॉर्चुनेटली वो तो उस पीरियड में था, तो रिप्लेस करके दूसरा दे गया पैनासोनिक, वही बड़ा स्क्रीन था ऐसे काफ़ी। पर उस वक्त हमने देखा था एथरूल वो क्या था ना उसका आपका, अरे ये टर्की का टीवी जो था, टर्किश टेलीविजन का, 550 एपिसोड देखे थे यानी। तो वो एक पागलपन दीवान की है, बहरहाल दैट इज़ देयर, बिकॉज वही एक नशा है, उसी को आप बियर समझो, विस्की समझो, क्या समझो, बट वी एंजॉय दैट। तो कहने का मतलब है दैट विल गिव यू तुम्हारे होराइजन्स और तुम्हारे जो सोच को वो खोलता है। यू नो हाउ ओल्ड आई विल बी दिस ईयर? सोचो ऐसे ही, जस्ट थ्रो इट। ये अलग बात है रिटायर होना पता चल गया तुमको। आई विल बी 70 माय डियर फ्रेंड्स, यस। अब 70 के आदमी के बाद अगर इतनी एनर्जी भाग, सुबह तो कुछ नहीं खाया भाई, मैं सोचा चाय पीऊंगा, चाय भी नहीं, 7:30 के बाद में पीऊंगा। क्यों है एनर्जी? क्योंकि जो कुछ मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे मजा आ रहा है, पैशन, समझे आप? तो कहने का मतलब है कि इफ यू आर नॉट पैशनेट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, यू विल नेवर एक्सेप्ट। कुछ भी करो यार, साले को, अरे यार इवन जो झाड़ू लगाने वाली लेडी है उसके में भी सुर होता है, अगर वो बेसुरी लगाएगी तो दूर रहेगी। क्यों कहते हो यार थोड़ा दबा के करो, क्योंकि सुर चाहिए तुमको उसमें भी। जिंदगी में सुर का होना बहुत जरूरी है, डोंट यू थिंक? तो हमारे आसपास की सारी चीजें मिलती है हमें उन्हीं से हम सीख लेते हैं। मुझे याद है, मैं दूरदर्शन में, मैंने ऑफकोर्स काफ़ी लंबा दौर था, बट तुम्हारे जैसे स्टूडेंट जब आते थे ना, यू विल नॉट बिलीव, दे वुड जस्ट सी मी हाउ वर्किंग में बैठा लेता था, तुम लोग बैठे रहो, कोई नथिंग टू हाइड। मेरा बड़ा प्रिंसिपल सिंपल था कि कुछ छिपने वाला नहीं, जिसमें एक लास्ट स्टोरी सुनाऊंगा, उसके बाद जाना टेक योर लीव सर, इट इज ओके। इंटरेस्टिंग स्टोरी दूरदर्शन की थी। मैं 80s में दूरदर्शन जाता था। आई हैड एक पैशन था कि प्लेस करने का शौक था। उस जमाने में जो प्लेस होते थे, बाय द वे आज की तरह नहीं थे, 2.5 घंटे का एक टेक होता था। 6 कैमरे, 8 कैमरे, हर एक को पहले से पोजीशनिंग पता थी, प्रोड्यूसर को पता था कि यहाँ म्यूजिक उठेगा, यहाँ पर जूम करेगा, सब कुछ एक ही टेक, चलो सर।
मैं प्ले करता था। एक बार एक प्ले करके मैं अपना लौट रहा था एंड आई हैड टेकन परमिशन फ्रॉम डॉक्टर वी शांताराम, वो चेयरमैन थे। उनका शर्मा जो भी तो पैसा मिलेगा उसका 25% CFSI देना, वो 250 रुपये देते थे, मैं दे देता था, चलो ठीक है। प्ले करके मैं लौटा तो मुझे खबर लगी कि एक नए डायरेक्टर ने चार्ज लिया। मैं तब दूरदर्शन में नहीं था, आई वाज ऑन CFSI, चलो सर 80 डायरेक्टर जो भी थे उनको मैं जानता था, क्योंकि उनकी वाइफ मेरी धर्म बहन थी, लखनऊ से थे वो, तो राखी और मान ली। अरे मैंने कहा सतारीस देर, मैं तेजी से आया तो कमरे के पास जैसे एंट्री दी तो नेचुरली एक रूम में उनका पिए था, राम करके था, ऐसे वो बता रही है सर इसलिए करके आए बोलो सर, अरे वो मुझे जानते हैं आप, तुम बोलो सर, नो 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 सर, नो नो। उस आदमी ने मुझे वहाँ 10 मिनट बैठा रखा, वहाँ छोटा सा होल था, मैं देख लेता था उसमें, और वो खाली बैठे हैं, तुम जान रहे हो सर वेरी बिजी। मैंने कहा चलो फिर देखिए, मैं बाहर निकला, आया इधर उनका दूसरा रोड था, मैं इस कमरे में घुसा, मैंने ऐसे ही किया, खुल गया वो। अरे मैंने भाई साहब आप, अरे मुकेश तुम क्या, मैंने कहा आपका वो पीए बोलता है वो बहुत बिजी है, अरे वो पागल है, वो नंदी है, वो तो नंदी का नाम है शिव का, तुम आ जाओ। बट दैट वाज अ ग्रेट लर्निंग, ग्रेट। मुझे नहीं मालूम था कि कालांतर में आई एम गोइंग टू बी द डायरेक्टर देयर एंड द सेम पीए विल बी देयर। नाउ सी द स्टोरी, नाउ सी द स्टोरी, आई गो देयर एंड नाउ आई टेक एन एंट्री एंड आई डिडंट टेल एनीवन दैट आई एम टेकिंग चार्ज। मैं आया, वो पहचाना नहीं मुझे, 10 साल पहले हुआ था। शर्मा, हाँ बताइए किससे, मैंने कहा सर मैं चार्ज लिया सर यहाँ पर डायरेक्टर, मैं बड़ा डायरेक्टर मुकेश शर्मा, वो एकदम जब मत करो, रामू है ना, आइए आइए। मैंने कहा रामू एक कहानी है, मैं आया था तुम्हें याद नहीं होगी, सुनो सब भूल जाते हैं। ये बाहर लिखा है डायरेक्टर से मिलने का समय 3 से 5 निकाल के फेंक दो, ये लिखा है निकालो, ये नहीं लगा, डायरेक्टर सबके लिए खुला है, नथिंग इज हाइडिंग, कुछ हम छिप के काम नहीं कर रहे। स्पेशली आर्टिस्ट अगर आते हैं तो भाई साहब सर के बल लेके आना उनको यहाँ, लेट देम नॉट फील कि वो गवर्नमेंट के उसमें आ रहे हैं, और जो गड़बड़ करेगा वो उसके बाद मेरे से बुरा नहीं। एक चेंज सर, मैं अपनी चाय खुद बनाता था, अगर आप मेरे पास आते ज़माने में दैट वाज पीपल क्यों यार ये सूट वूट पहन के टाई लगा के चाय अंदर से बना के ला के देता है, क्यों यार एक अपनापन लगता है ना, मीन्स लुक आई वांट टू रियली सर्व यू, हेल्प यू, बी विद यू, टेल मी ना। तो उसमें याद है वो थी आपकी जर्नलिस्ट टॉप वीर सांघवी की वाइफ, वो आई है ऐसे एक बार मिलने के लिए, मैं चाय पी रहा था, मैं चाय पियेंगी कौन सी, मैंने कहा दिलमा है सिलोन की, बोले अच्छी, हाँ हाँ। मैं उठने लगा, आप जाना रहेंगे तो बैठिए बताता हूँ। मैं गया एंटी रूम में जाके बना के ला के दी। अगले दिन पेपर में टाइम्स में छपाता है, बड़ा सूट पहनता है, करता है, चाय खुद पिलाता है हाथ से और फ़ोन लेता है। मुझे ज़रूरत भी नहीं थी इतनी पब्लिसिटी, बट आई वॉज कॉन्शियसली क्रिएटिंग एन इमेज फॉर द केंद्रा। डू यू नो आई प्लेड रग्बी खेला मैंने 4 बार, सेलिब्रिटी रग्बी। मेरे साथ गवास्कर खेल रहे थे, मेरे साथ दुनिया के लोग थे, इवन ये मिनिस्टर जो अंदर हुए देशमुख, अनिल देशमुख जो छोड़, ही वॉज देयर, उसका फोटो दिखाऊँ आपको मैं, तो आप खुद नहीं विश्वास करेंगे क्या, बिकॉज आई वॉज डेलिबरेटली क्रिएटिंग एन इमेज ऑफ अ डायरेक्टर who is, I have done a catwalk यार, छोड़ो ना, I have worn Nita Lona's dress, yes, and who called me Shana MC, ये मैं कहा ऐसा ओके तो, लेकिन कब गया नो टोबैको डे वाला, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्ट नहीं छोड़ू, तो मैं करूँगा तो नो टोबैको डे वाला कम, और सेलिब्रिटीज से मैं भी था, ओके। और मेरे साथ थी 6 फुट लंबी मुझसे बड़ी, क्या नाम था उसका, शी वाज मॉडल, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम, बट बॉम्बे की, तब तो शी मस्ट बी क्वाइट ओल्ड नाउ। तो कहने का मतलब है कि यार जो भी करना है उसको मस्ती से करो, प्यार से करो, पैशन के साथ करो, द्वेष और भाव से मज़ा नहीं आएगा। मदद अगर करते रहोगे सबकी तो लाइफ में कोई कमी नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ जाते आते कहूँगा, अपने पैराशूट पैकर्स का कभी भी इग्नोर मत करना। पैराशूट पैकर्स क्या हैं ये भी समझ लो। डाइनिंग हॉल में एक रेस्टोरेंट के एक फैमिली बैठे खाना खा रहे, डाइन कर रहे थे। एक आदमी उधर से आया, उसने देखा उनको डाइन करते हुए, तो उसने कहा जय हिंद सर। जय हिंद भाई, पहचाना नहीं सर, आप स्वयं लूथरा जेट फाइटर के इंडियन एयरफोर्स के पायलट थे। हाँ हाँ सर, मैं आपका पैराशूट पैकर था। पैराशूट पैकर, इस आदमी ने साले 3 बार मेरी जान बचाई, इसको मैंने पहचाना नहीं। इससे ज़्यादा क्या बुरी बात हो सकती है। वो आदमी रात में घर में गया उससे कहा यार आई एम रियली सॉरी यार, मैं आंसू में था, वो था कि प्लीज़, बट लेकिन बात वहाँ ख़त्म नहीं होती। हमारे पैराशूट पैकर्स ये भी हैं, बाहर के लोग हैं, सब है पैराशूट पैकर्स। यार तुम्हारा लिफ्ट वाला भी पैराशूट पैकर है, तुम्हारी क्या हम उनके साथ हलो भी करते हैं या अपनी दुनिया में रहते हैं? जब ये तुम्हारे मन में आ जाएगा करने के लिए, तो देन स्काई इज द लिमिट, तुम्हें फिर कोई बुरा नहीं लगेगा। तो क्या जरूरत है मेरी उम्र में जाके सोचो बुरा नहीं लगे, इसी उम्र में सोचो ना बुरा लगना बंद कर दिया, बुरा लगना बंद हो गया मुझे, आई हैव अटेन्ड दैट।
अच्छा बुरा कुछ नहीं. राइट सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर. एंड जैसे साठे सर ने कहा उसका हमने सच में वो ये देख लिया आज कि yes you are the best communicator and yes we have seen and the key takeaways that I feel is the first thing that you mentioned, we need to be multitasker. For sure that is one thing that we have taken from your lecture. एंड मैं आज ज़रूर रामायण का सुग्रीव का आवाज़ वापस सुनूंगी मैं जाके घर जाके. एंड फॉर श्योर आज ज़रूर सुनूंगी मैं. एंड सर एक चीज़ जो आपसे हमने ज़रूर सीखी है आज कि यू हैव अचीव्ड सो मच बट हाउ टू बी हम्बल एंड ह्यूमिलिटी आज हमने ज़रूर सीखी है आपसे. एंड एज अ टीचर डेफिनेटली दैट इज़ माई पर्सनल की टेक अवे दैट हाउ टू बी अ गुड कम्युनिकेटर एंड टीचर लाइक यू. डेफिनेटली सर बहुत सीखने को मिला है आज. एंड एज यू हैव मैंशनड सो मेनी एग्जाम्पल्स आई विल जस्ट से कि एक गांधी जी का एक स्टेटमेंट है महात्मा गांधी का, बी द चेंज यू वांट टू सी. सो जो आपने कहा कि आप है आप फ्यूचर है, तो इनके लिए यही है कि अगर आप वो चेंज लाना चाहते हैं मीडिया में तो उनको वो चेंज बनना पड़ेगा. दे हैव टू बी द कैटलिस्ट, दे हैव टू बी द फैसिलिटेटर्स. एंड लाइक यू सेड कि हाँ येस दे आर व्हाट यू सेड पैराशूट पैराशूट पैकर्स. तो येस आर टेक्निकल स्टाफ इज़ येस आर पैराशूट पैकर्स ओनली. उनके बगैर हमारा काम नहीं हो सकता है. सो थैंक यू सो मच सर फॉर अ वंडरफुल सेशन. वी रियली एन्जॉयड. मतलब आपके सेशन के लिए हमारे आंखें मतलब झपकी भी नहीं है आज. नहीं मतलब यस. एंड येस ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट वी कुडंट लिसन टू यू मोर बट डेफिनेटली जो आपने वर्कशॉप बोला है यस यस सर. एंड डेफिनेटली मैं खुद वहाँ पे स्टूडेंट बन के आपको सुनना चाहूँगी सर, क्योंकि दो आई एम टीचर बट स्टिल आई वांट टू बी द स्टूडेंट दैट यू आई वांट टू हियर सर. So thank you so much sir, and on behalf of Tirak Maharashtra Vidyapeeth, all the staff, students, I thank you from the bottom of our hearts for giving us a wonderful insight about television, and definitely we will be the change that we wish to see.